Hello students, in the last lecture we covered the topic pinus. We completed it with its morphological feature, distribution, anatomical part and reproductive part, and also gametophytic development. Today we will start another gymnosperms, that is ephedra. We will cover distribution and morphological features today. So first comes to the distribution and classification of ephedra. Ephedra, as we all know, it is a plant, so it belongs to the kingdom Plantae. Division Gnetophyta, class Gnetopsida, belongs to the order Ephedrales and family Ephederaceae, and genus is Ephedra. Ephedra is commonly known as the joint pine or joint fir or Mormon tree, or there are so many common names of this plant. It is called joint fir because it has the nodes and internode like stem and have the very small scaly like leaves. That's why it is known as the joint fir. It is the only genus present in the Ephederaceae family. Means जो Ephederaceae family है उसमें सिर्फ यही genus है Ephederaceae family, and Ephedrales order में only have the single genus, that is Ephedra. It is represented by the 50 species in it. It is also a xerophytic plant like Cycas and Pinus, as it is also from the gymnosperms. So it grows in the dry climate over the wide areas of like northern hemisphere, Northern America, Europe, North America, Southwest and Central Asia. In India, out of 50 species in India, there are only 8 species of the Ephedra in India. Some of those are Ephedra intermedia, Ephedra jerseyedina, Ephedra sectalis and Ephedra foliata, etc. And all these species are distributed in the dry region because it is a xerophytic, so it found in the dry region of the Haryana, Punjab, Rajasthan and some part of the Kashmir and Sikkim also. Now comes to the morphological features of the Ephedra. As it is a gymnosperm, so main plant body is sporophyte. It shows the xerophytic characters as well. Xerophytic characters are those की जो इसकी लीव्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होती हैं, बहुत ही माइन्यूट लीफ होती हैं, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है. इसके जो लीफ है उनके ऊपर सीथ प्रेजेंट होती है. इसी टाइप से जो इसकी स्टेम है वो भी शाइनी होती है. और ये सब में करेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें जीरोफिटिक करेक्टरिस्टिक है जो कि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उसको मिनिमम कर देते हैं. तो इसी टाइप से सम एनाटॉमिकल फीचर्स भी इसके होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि जीरोफिटिक करेक्टर शो करेंगे. तो मोस्टली जो प्लांट बॉडी है दैट इज वुडी एंड शर्ब. मोस्टली जो एफिड्राज है, मोस्टली स्पीसीज है इसकी, दैट आर द शर्ब्स. ओनली इफ यू आर टॉल देन द शर्ब्स और ट्री लाइक स्ट्रक्चर. So a few species are also lianeous and some species grow into the small tree. For example, जो Ephedra compacta है that reach up to 3 cm in height, but Ephedra triandra that is a tree and it is height in several meters. As all the gymnosperms are differentiated into 3 parts, root, stem and leaves, so it is a gymnosperm, that's why it is also differentiated into 3 parts. It has the root, stem and leaves. रूट जो जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली जो रूट्स होती हैं दैट आर डाइकोट टाइप ऑफ द रूट. सो डाइकोट्स में क्या है, टैप रूट सिस्टम होता है. दैट्स व्हाई इन द एफिड्रा आल्सो इट हैज अ प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम. इट इज आल्सो अ फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स. लेटर ऑन एडवेंटिशियस रूट्स आर आल्सो डेवलप्ड. इससे पहले हमने साइकस और जो पाइनस पढ़े थे उसमें हमने दोनों में पढ़ा था कि उनके साथ में कोई ना कोई फंगल एसोसिएशन है. बट जो एफिड्रा की रूट्स हैं इसमें माइकोराइजल या कोई भी फंगल या एल्गल एसोसिएशन प्रेजेंट इस टाइप का नहीं है. तो इसमें कोई भी माइकोराइजा वो नहीं है. तो इसकी वजह से इसमें जो रूट हेयर है उसकी भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है रूट हेयर्स का वो रूट हेयर्स को ही करना पड़ेगा. पाइनस की तरह से नहीं है कि वो माइकोराइजा कर देगा, या फिर जो साइकस में था वहाँ पे एल्गल एसोसिएशन था वो हो जाएगा. तो यहाँ पे जो सारा फंक्शन है वो क्या करेंगे, रूट हेयर्स. तो इसमें एडवेंटिशियस रूट्स की भी ग्रोथ होती है और रूट हेयर्स की भी ग्रोथ होती है, बट नो माइकोराइजा. नाउ कम्स टू द स्टेम. लाइक इक्विसिटम स्टेम. इक्विसिटम स्टेम में भी क्या है, हम की जो रिब्ड होती है, रिब्ड मीन्स क्या है, आपको उसमें ग्रूव्स दिखेंगे, आपको इसमें लाइनिंग दिखेंगी कि कहीं से आपकी जो रिब लाइक जो स्ट्रक्चर, जैसे हमारे उसमें रिब होती है ना कमर में, उसी टाइप से आपने इक्विसिटम भी पढ़ा होगा, उसमें रिब्ड होती है, रिब्ड एंड ग्रूव प्रेजेंट होंगे. तो इसकी जो स्टेम है
ग्रीन स्टेम होगी, आप देख रहे हो इस टाइप से ग्रीन स्टेम होगी, रिब्ड होगी, रिप प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, ब्रांच होगी, यहाँ पे आप देखो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अंदर, एंड फ्लूटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये देखो इसमें यहाँ पे ये नोड्स प्रेजेंट है और ये इंटरनोड्स प्रेजेंट है। तो पूरी जो स्टेम है वो इंटरनोड्स और नोड्स में डिफरेंशिएटेड होती है। इट इज डिस्टिंक्टली जॉइंटेड फॉर क्या है, जो पूरी स्टेम है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड है, और नोड्स पे जो लीफ प्रेजेंट होते हैं दैट आर हाईली रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जॉइंटेड फिर। It performs the function of photosynthesis because the stem is green in color, so it have the chlorophyll. That's why जो main जो photosynthetic function है वो भी इसका कौन stem कर रही है, because leaves are highly reduced। जो leaves आप देखोगे इसमें बहुत ही minute है, तो जो main photosynthetic function है वो कौन करेगा, stem ही इसमें main photosynthetic function करेगा। तो इसमें क्या है, जो stem है leaf का काम कर रही है, so we can also call it as a phylloclade की जो modification हो रहा है stem में वो leaf के functions कर रही है, so we can be called it as a phylloclade। The branches arise from the axillary buds। जो ये axillary buds हैं यहाँ पे, ये जो axillary buds present हैं इनके उसमें से जो branches हैं, different जो branches हैं वो arise होंगी। Therefore in pair of 3 or 4 according to the number of scale leaf at the node in the different species। कि जो number है, जो ये scale leaf का number है यहाँ पे जो axillary buds हैं, कि वो हर एक species में अलग होगा, और उसी के according जो ये branches है कि एक node से कितनी branches निकलेंगी, वो branching pattern भी species to species कि जो एफिड्रा की different species हैं उनमें वेरी करेगा। ये इस टाइप के शर्प लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको इसमें जॉइंटेड। फिर ये देखो आप, ये लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट है, फिर शॉर्ट नोड्स प्रेजेंट है, देन इंटरनोड एंड नोड्स, और जो नोड्स हैं उस पर बिल्कुल ही स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आप दूर से अगर देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस पे लीफ प्रेजेंट है, बट इस पे लीफ है बहुत ही माइन्यूट। जो इसके ये नोड्स प्रेजेंट देख रहे हो आप, ये नोड्स देख रहे हो, इन पे इस पे बहुत ही स्मॉल स्केल लाइक लीफ प्रेजेंट है। जो ब्रांचेज हैं वो भी ग्रीन होंगी, दैट ऑल्सो डिफरेंशिएटेड। अब ये देखो आप, इसमें जो ब्रांचेज हैं ये देखो, ये ब्रांचेज भी सारी की सारी क्या हैं, ग्रीन है। यहाँ से ये देखो ये है, ये ब्रांचेज भी निकले हुए भी सारे क्या है, ग्रीन है। इनमें भी सेम उन्हीं की तरह से क्या है, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। ब्रांचिंग स्टार्ट अर्ली एट द कोटिलिडन स्टेज, मींस जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, कोटिलिडन स्टेज होती है, वहीं से जस्ट जो इसका लोअर इंटरनोड होता है वहीं से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रांचिंग स्टार्ट्स एट द कोटिलिडनरी स्टेज। एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम में ट्यूनिका लेयर है जो वो वेल मार्क्ड होती है, कि जो ट्यूनिका है वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड होती है। इसमें जो ग्रोथ है इंटरनोड की वो नोड पे डिपेंड नहीं करती, इंटरनोड की जो ग्रोथ है वो इंडिपेंडेंट होती है। और वो किसकी वजह से, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक जोन है एट द बेस ऑफ इंटरनोड वो प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से जो इंटरनोड है वो इलोंगेट करता है, ग्रो करता है। और ये जोन कब, जैसे ही एक ग्रोइंग सीजन खत्म होता है तो उस टाइम जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है ये ड्राई अप हो जाता है, और जो इंटरनोड की ग्रोथ है वो फिर स्टॉप हो जाती है ग्रोइंग सीजन में। उसके बाद फिर न्यू मेरिस्टेम बनते हैं और फिर उसकी सेकेंड फिर से ग्रोथ स्टार्ट होती है। इट रिजल्ट इन ब्रिटलनेस एंड शेडिंग ऑफ द ब्रांचेज, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ स्टॉप होगी तो जो ब्रांचेज है वो शेड हो जाएंगी, और ये ब्रांचेज को रिप्लेस कौन कर देगा, फिर से नई एक्सिलरी बड आएंगी और नई एक्सिलरी ब्रांचेज बनेंगी। तो इस टाइप से जब एक ग्रोइंग सीजन खत्म होता है तो जो ओल्ड ब्रांचेज हैं वो शेड हो जाती हैं, उसकी जगह फिर से नई लीव्स आएंगी, नई एक्सिलरी ब्रांचेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन में। ये इस टाइप से पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पे जो इसमें कोटिलिडन स्टेज है, जो लोअर इंटरनोड है वहीं से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो रखी है, और जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के उस पे ये नोड्स हैं, इसमें ये इंटरनोड्स हैं। नोड्स पे क्या है, इसमें स्केली लीफ, इस टाइप से जो लीव्स हैं वो प्रेजेंट है, स्केली लीफ, यही इसमें लीफ प्रेजेंट होती हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स में पूरा डिफरेंशिएटेड होता है। ये है नोड विद अ स्केली, ये इंटरनोड है, और जो ये लीफ है, लीफ जो है एक दूसरे से ज्वाइंटेड होती हैं और सीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं नोड के ऊपर। नाउ कम्स टू द लीव्स। लीव्स स्मॉल है, स्केली है। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये पूरा नोड है, ये इंटरनोड है, ये लीफ है। तो जो लीफ है वो बिल्कुल स्मॉल इन साइज है, और
क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। ये देखो एक इधर प्रेजेंट है तो एक इधर प्रेजेंट है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। और जो बेस है वहां पे ये ज्वाइंट करके, यहाँ पे ये देखो बेस पे ज्वाइंट हो रखी है, और ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी बेसल सीथ जो बना रही है यहाँ पे। ये दे आर सो माइन्यूट दैट देयर इज नो यूज दैट इज अनेबल, मीन्स इतने अगर हम स्टेम का कंपैरेटिवली देखें, स्टेम इतनी लार्ज, स्टेम का सरफेस एरिया है कंपैरेटिवली लीव्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट कर रही है इनका नेग्लिजिबल पार्ट है। सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे कौन कर रही है, स्टेम कर रही है, क्योंकि स्टेम ग्रीन इन कलर है। एक्सिल ऑफ ईच लीफ बी प्रेजेंट ए बड फॉर द ब्रांच, जो ये एक्सिल है इनका लीफ का, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं हर एक एक्सिल में, और इन्हीं बर्ड्स से क्या है नेक्स्ट जो नई जो ब्रांचिंग है वो निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे हमने पाइनस में पढ़ा था, साइकस में पढ़ा था कि दो टाइप के लीव्स है वहां पे, स्केली लीव्स एंड ट्रू लीव्स या फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ जो फोटोसिंथेसिस करते थे और स्केल लीफ ब्राउन इन कलर थे। तो यहाँ पे एफिड्रा में सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रू फोलिएज लीफ है या जो फोटोसिंथेटिक लीफ है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। So this is all about the morphological features and distribution of ephedra. Thanks. In the next lecture we will cover the anatomical part of ephedra. Thanks.